5,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर लगेंगे, 5 साल का कोर्स होगा, 10,000 का ईयर रख लो तो 10 गुना 5 50। एमएससी जो फिजिक्स में किए थे वहाँ पे क्या स्कोप रहता है जॉब के लिए, क्या इंडस्ट्री हायर करती है, क्या आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, या क्या प्लेसमेंट का सीन रहा, और फिर आगे पीएचडी के बाद या पीएचडी के दौरान क्या। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे पीछे कि स्कूल ऑफ फिजिक्स है, तो डेफिनेटली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कूल ऑफ फिजिक्स, एंड इन दिस वीडियो वी विल बी बेसिकली टॉक अबाउट बोथ मास्टर्स इन फिजिक्स एज वेल एज पीएचडी इन फिजिक्स, बिकॉज दिलीप हैज़ डन मास्टर्स फ्रॉम आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड ही इज़ डूइंग परसुई। तो हमारा जो टॉक मेनली 3 पार्ट में होगा। देयर विल बी जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, और यहाँ का फिजिक्स डिपार्टमेंट कैसा है, किस किस एरिया में रिसर्च होता है, और यहाँ पे लैब फैसिलिटी कैसे हैं, फैकल्टी कैसे हैं, व्हाट आर द फ्यूचर स्कोप। तो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन विद द दिलीप। सो प्लीज़ दिलीप, इंट्रोड्यूस yourself. So, as Navneet already told that I have completed my master from this School of Physics, University of Hyderabad only. So, I did my masters in a 2019 to 21 batch. So, basically, I am a theoretical high energy physics student. So, in my master's course, there was a facility to take a course from high energy as well as condensed matter. So in University of Hyderabad there is a facility that we can choose the experimental course also for our like project work and all in the masters. So yeah, we can say that in this university there are a lot of professors compared to other university in our, especially in physics department. So we can have a exposure for the both high energy as well as condensed matter as well as optics and electronics. So I will not talk about much in electronics because Shivendra is already in the electronics department. So you joined physics in 21 batch. Yeah, actually PhD I joined in 21, but my masters I joined in 19. Yeah. Okay. So we'll talk about more. And another side we have one more champ, that is Shivendra. So he will be just briefing about himself. Shivendra, बताइए थोड़ा अपने बारे में लोगों को. Hi, good afternoon. I am Shivendra. Actually, I have completed my BTech in Electronics and Communication Engineering, and then I have completed MTech in Statistical Computing with a specialization in Data Communication and Data Science from Jawaharlal University, JNU, Delhi. That's great. And now I am pursuing a PhD in Electronics and Communication, like Electronic Science and Technology. My department is basically in under School of Physics. The name of my department is Center for Advanced Studies in Electronic Science and Technology. In my department, there is a lot of facilities, a lot of research areas regarding electronics, like microelectronics. You can have the specialization in signal processing and communication, like fabrication of antenna, wave propagation, and VLSI design, analog and digital design. Nowadays in India, there is very limited facilities and limited professors in analog design. But we are fortunate, and so I have the facilities in my center of analog design, and I am proud to be introduce myself. I am also working in analog design. That's really fascinating part what he mentioned. Everything he has just briefed about it. तो इस वीडियो को हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, काफ़ी मतलब लगेगा कि इंगेजिंग टाइप से हो। और इस वीडियो में हम विभिन्न चीज़ों पे बात करेंगे। बेसिकली हम यह भी बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है, स्कॉलर्स का डे टू डे लाइफ कैसा होता है, कैसा इनका रूटीन होता है। यूजुअली व्हेन यू टॉक अबाउट कि पीएचडी स्कॉलर्स इन फिजिक्स, तो ये मतलब बड़े लेवल के खिलाड़ी होंगे, मार्स से आए होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आर्ट्स का हूँ या फिजिक्स के हैं, एंड यू कैन बी द नेक्स्ट अमंग अस, एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरव्यू। तो शिवेंद्र से ही हम स्टार्ट करेंगे। 3 चीज़ें फिर हम शिवेंद्र से पूछेंगे कि एक डे टू डे लाइफ आपका यहाँ कैसा होता है, कैंपस लाइफ आपको कैसा लग रहा है, और आखिरी पड़ाव जो आएगा, जो कि यूजुअली जो नॉन फिजिक्स के स्टूडेंट है वो भी देख रहे होंगे, उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि यहाँ एडमिशन प्रक्रिया क्या है। तो यूजुअली जो होता है एज ए स्कॉलर, फिजिक्स स्कॉलर, क्या रहता है आपका डे टू डे रूटीन? Actually, मेरा सुबह को I woke up in earlier morning, then I go for breakfast, then fresh, and then I join my lab in 10 a.m. morning, and then I have lab routine from 10 to 6 to every day, and between a day there is a lunch. I go for lunch from 12:30 to 2, and nothing else. We are doing work in lab, and teachers and faculties are very supportive.
so we are not facing too much problems and तो all facilities are- मतलब यहाँ पर जो एक एकेडमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है वैसी बात नहीं है, जैसा कि बहुत जगह र्यूमर भी फैला हुआ है एकेडमिक्स में काफ़ी बोरिंग लाइफ होती है, पीएचडी मतलब आप ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हो, लाइफ में कुछ फ़न है नहीं। परंतु दिलीप हमारे जो कि पहलवान आदमी हैं, ये जिम भी जाते हैं, तो ही हैज़ सम डिफरेंट रूटीन। तो दिलीप आपका कैसा दिनचर्या होता है एज ए पीएचडी स्कॉलर? So basically, as Navneet already told, I went to gym and all. Like I wake up in the morning around That's daily 5:30. routine. You daily go gym Yeah, early yeah, morning. daily. Except on Sunday. Actually, I take a rest for one day in a week. So yeah, so I wake up in the morning at 5:30. After getting ready and all, I go to gym. Then after coming from there, breakfast and all I took, and I go to my department at 9 or 9:30. And after like around 12:30, after 12:30 I come for a lunch and again go to my lab. लंच का पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज यूजुअली वी मीट ऑन द लंच ऑन द सेम टेबल पे होता है, जिसमें हम बहुत तरह के बकैती करते हैं, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे किसी को गाली गलौज देना हो, एमंग अस नॉट अदर पीपल, चाहे किसी मतलब कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे बात करनी हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग का बात हो, क्योंकि हम लोग देश का जीर्णोद्धार कर सकते हैं अपने लंच टेबल पे ही सब कुछ कर लेते हैं। तो लंच का और डिनर का समय काफ़ी मतलब रोमांचदायक होता है। तो दिलीप का रूटीन आपने देख लिया और शिवेंद्र का भी रूटीन देख लिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ओवरऑल, इफ़ यू हैव टू जज कि जब आप पीएचडी स्कॉलर होते हो तो आप सबसे पहले देखते हो कि आपके लैब फैसिलिटी क्या क्या हैं। तो यूजुअली एज ए नॉर्मल पर्सपेक्टिव पीपल हु इज़ लुकिंग फॉर मास्टर्स एज वेल एज पीएचडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो उनके लिए लैब फैसिलिटी में व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन दे कैन हैव एंड डेफिनेटली दे विल कम टू नो कि दीज थिंग्स आर देयर इन द लैब। सो इट्स डिपेंड ऑन एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो यही डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च फील्ड किस डायरेक्शन में, लाइक अगर उनका ऑप्टिक्स फील्ड है तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में बहुत ही अच्छा लैब फैसिलिटी है फॉर ऑप्टिक्स डिपार्टमेंट, कंडेंस मैटर के लिए भी है। और बात करें जैसे कि मैं हाई एनर्जी से हूँ तो यहाँ पे हाई एनर्जी में एक्सपेरिमेंटलिस्ट भी है और थियोरेटिकल भी है। सो वी कैन से दैट दिस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हैव very good infrastructure for that lab facilities and all. So yeah. तो लैब फैसिलिटी के यहाँ कोई कमी नहीं है। अब शिवेंद्र थोड़ा आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट्स आई थिंक विद इन फिजिक्स, क्या आपके डिपार्टमेंट का एडमिशन अलग प्रक्रिया से होता है और क्या फैसिलिटीज़ दिए गए हैं? Actually, my department is joined with the School of Physics, but it is a separate department. It's known as Center for Advanced Studies in Electronic Science and Technology. So my admission in my department is also conducted by University of Hyderabad through admission test. And you have an advantage if you have JRF, you have GATE. If you have GATE, in any other university you do not get the fellowship of AICT, but if you get the admission in University of Hyderabad, you will get same as JRF amount if you have GATE qualification. So this is the very good advantage, means like that my department is actually approved by AICT, so it is like very similar to IIT and NITs. तो आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट पे किस किस कोर एरिया में रिसर्च होता है, जैसे आपका भी रिसर्च किस एरिया में चल रहा है? Actually my research area basically in analog design. So in analog design we design some like semiconductor device. There is mainly in my department there is 3 research areas. One research area is semiconductor and related VLSI design, analog and digital design. And another one is for RFIC, radio frequency and infrared. And third one is antenna and wave propagation like this. So there you will design antenna using CST. So we have the facility in my center for like modeling, simulation and also at the fabrication. In we have also collaboration with Center for Nanotechnology. Oh, great. So you can work in material science, like if you trying to work in different kind of materials, so you can have as my HOD is Professor MGK. So MGK sir is specialization is basically targeted to material science. So like as I am also working on analog design, so my research topic is basically is the combination of 3, is like machine learning, modeling, and it's analog design, and third one is material science. If you go for the first one is design, so the design is using analog technology, and then it is go for simulation and modeling. So modeling and simulation using machine learning is basically applied area of computer science and data science.
And third one is the fabrication. When you go fabrication part, then it will comes under the material science engineering. So all are the facilities we have having in single roof. Okay. So we have a very good facilities. We have electronic microscope. We have high frequency measurement lab. We have other CST and so many equipments in our lab. तो यह सारे इक्विपमेंट्स के लिए आपको अपने जेब से एक्स्ट्रा कुछ नहीं खर्च करना पड़ता है या अदर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि एज़ फार एज आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग हियर, वर्किंग इन सम अदर यूनिवर्सिटीज़। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे उनके पास लैब फैसिलिटी नहीं रहती है तो 1-2 महीने का उनका टाइप प्रोग्राम होता है। कभी IIT दिल्ली जाते हैं, वो IIT कानपुर जाना पड़ता है या कुछ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते हैं। बट फॉर्चुनेटली एज शिवेंद्र टोल्ड कि एवरीथिंग इज़ देयर अंडर द रूफ, कोई इधर उधर भटकना नहीं है। अब थोड़ा माहौल को ढीला करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई की बात हो गई बहुत ज़्यादा। अब हम दिलीप के पास चलते हैं। तो दिलीप, जनरली जो होता है, जैसे अभी नए बच्चे आएंगे PhD में और या फिर जो नेक्स्ट ईयर यह टॉक को देख रहे हैं, तो यहाँ आप एक बेसिक प्रोसेस बताएं, यहाँ एडमिशन का क्या प्रक्रिया है, जो इंट्रेंस होता है, इंटरव्यू होता है, और जनरली बच्चों को किन किन टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए वाइल दे आर अपीयरिंग फॉर द PhD एंट्रेंस। ओके, सो अगर PhD एंट्रेंस जैसा कि प्रोसीजर तो बहुत इजी होता है। पहले रिटन टेस्ट होता है जिसमें अगर आपका 50% मार्क्स है तो आपको इंटरव्यू कॉल होता है। फिर डिपेंड ऑन योर प्रीवियस स्टडीज़ लाइक बेसिक, नॉट दैट मच एडवांस लेवल ऑफ फिजिक्स, जस्ट बेसिक फिजिक्स दे आस्क इन अ इंटरव्यू। सो अगर तुम्हें उनके बारे में बेसिक नॉलेज है फिजिक्स का तो तुम्हारा इंटरव्यू इतना टफ नहीं रहता है। और वो इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद सेम प्रोसीजर यहाँ पे तुम्हें एनरोलमेंट मिल जाएगा। फिर तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है, वो पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि तुम्हें हाई एनर्जी में जाना है, कंडेंस में जाना है, ऑप्टिक्स में जाना है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग गाइड को चूज़ करते हो और अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग में 6 मंथ कोर्स वर्क रहता है। फिर उसके बाद आपका कोर रिसर्च स्टार्ट होता है बेसिकली। अब बात रही अपने कि बेसिक नॉलेज फिजिक्स का किस पर फोकस करना चाहिए, किस फिजिक्स सब्जेक्ट्स पे। तो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेसिकली देखा जाए तो मोस्टली क्वांटम मैकेनिक्स इम्पॉर्टेंट रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैथमेटिकल फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड समथिंग। सो अगर ये 4-5 सब्जेक्ट अगर कोई कवर कर लेता है अच्छे से तो उनका ईज़िली यहाँ पे एंट्रेंस क्लियर हो जाता है और यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। Thank you so much. It was the 2 minutes he told. I think it was very condensed and informative. Now coming to the next है, जैसे ही आपकी जो हायर मतलब एजुकेशन की आप बात करते हैं, PhD वगैरह की बात करते हैं, आपके पास लैब है, तो डेफिनेटली एक दिमाग में रहता हो, यार मैं तो गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे पास स्कॉलरशिप्स नहीं है, वहाँ जाएंगे तो लैक्स और करोड़ ऑफ रुपीज़ लगेंगे। तो यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या होता है, एज यू बी इन द पार्ट ऑफ योर मास्टर्स प्रोग्राम एज वेल एज द PhD प्रोग्राम। तो दिलीप विल टेल अस कि मास्टर्स में और PhD में दोनों में क्या एकदम कोर्स स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर रहता है। तो जैसा कि हमको पता है कि इस यूनिवर्सिटी का फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, बहुत ही इफ़ेक्टिवली कम है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपन कहे। तो जैसे कि मैं मास्टर्स की बात करूं तो मास्टर्स का यहाँ पे ट्यूशन फ़ी की बात करें पर सेमेस्टर तो वो 4.5K है, अराउंड 4500 रुपये है। 4,000 में हो जाए। और अगर PhD की बात करें तो वही 5,000 5,500 है, जो कि लगभग हमारा भी है। हाँ सेम इतना ही है। कोई लैब का कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता। इन इंडिया है ये, बहुत बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो अपन बोल सकते हैं कि लैब का कोई हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता कि अगर हम इस लैब में तो हमें ये पैसा देना पड़ेगा या हमें ये इक्विपमेंट यूज़ करें तो ये पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ सेमेस्टर वाइज पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी लगता है जो कि 5,000 तक तुम्हारा होता है। ओके, सो इट वाज नाइस। आई मीन मतलब 5,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर लगेंगे, 5 साल का कोर्स होगा, 10,000 का ईयर रख लो तो 10 गुना 5 50,000 में कंप्लीट हो गए। स्कॉलरशिप अगर JRF वगैरह नहीं भी है तो बहुत सारा जो स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी खुद फंड करती है, नॉन नेट फेलोशिप है, आई थिंक वो 8,000 करेंटली है। मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा, अगर किसी के पास फेलोशिप नहीं भी है तो जैसा कि पता होगा आपको कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद IOE इंस्टीट्यूट है। तो अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट में IOE फेलोशिप भी बच्चों को मिलता है। और कई प्रोफेसर्स के पास प्रोजेक्ट भी होते हैं तो उनके थ्रू IOE प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उनमें भी JRF सैलरी मिलता है अगर आपके पास गेट नेट कुछ है तो 31,000 हाँ 31,000। और स्पेशली अगर अपना इंस्टीट्यूट PMRF ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट भी है तो स्कूल ऑफ फिजिक्स में कई बच्चों को PMRF भी मिलता है। तो स्कॉलर रकम बता दें, उनके चेहरे पे खुशी तो PMRF का आई थिंक सबको ही पता होता है, जो कि फर्स्ट 2 ईयर इट इज़ 75 and it is increased 80 for last years. So 80,000 पर मंथ समझ लीजिए आप।
असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं की सैलरी होती तो है। स्कॉलरशिप का बेसिकली इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि इशू नहीं रहता है इस कैंपस में, तो आई विल सजेस्ट यू कैन जॉइन दिस। और शिवेंद्र, अब आप ये बताएंगे, शिवेंद्र बेसिकली जेएनयू से हैं, तो ओवरऑल आपको यह कैंपस कैसा लगा? हमने पढ़ाई की बात कर ली, एडमिशन प्रक्रिया की भी बात कर ली, गाइड यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, प्रोफेसर्स काफ़ी रिनाउंड हैं, नो एनी डाउट। आप उनके लिस्ट देख सकते हैं, एचयू के वेबसाइट पे जाएंगे, स्कूल ऑफ फिजिक्स का अपना पूरा उनका लिस्ट बना है, वो कहाँ से पढ़े हैं, क्या क्या फील्ड में उनका काम है, क्योंकि जिस फील्ड में आपको काम करने आना है बेसिकली यू शुड बी इन टच विद द प्रोफेसर, उसी में आपको प्रपोजल भी होता है। तो शिवेंद्र, थोड़ा सा आप हमें नज़र डराएंगे कि जैसे आपका अनुभव काफ़ी लंबा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, आपने जेएनयू से भी पढ़ाई किया, हम कंपेयर यहाँ नहीं करने जा रहे, बट हम यह देखना चाह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आपको कुछ ऐसी खास बात क्या लगी कि दैट डेफिनेटली एज रिसर्च स्कॉलर शुड लुक फॉर द यूनिवर्सिटी? Yeah. One thing I will tell you, in my institution, you got two different courses in MTech also. ओके। So, master program in my center, MTech in IC technology, Okay. and MTech in MBLSI, ओके। master in BLSI. So, we have 30 seats in Okay. both research अच्छा, इन area. एमटेक। In MTech. ओके। So, in the SU is special in this category among the top universities, central universities if I am talking about. So, in SU you got admission in MTech if you have GATE qualification. गेट इज कंपलसरी। So, if you have joined, if you are looking to join MTech with minimum fees and having maximum like achievements, अचीवमेंट आउटपुट। so if you can all join this university. So the thing is that I will tell you one thing, you will get fellowship 11,500. आई थिंक इट्स 12,500 फॉर एमटेक। Yeah, या 12,000। 12,500 after joining MTech, na? So but fees is very minimum, या। and if you will got definitely a very good facilities in my center. So and BLSI and ICT both are like emerging field nowadays. At Yes. PM Prime Minister is looking for semiconductor Yes, yes. evolution in India. यस। So before 2-3 years ago, there is minimum very few production in India in IC and BLSI and semiconductor Yes, true. industry. So basically, I am also the engineer, like a scholar in this semiconductor area. Na? स्कॉलर। So I'll support that institution, that scholars. मतलब यह If you कह रहे are हैं कि looking आप आए for, यहाँ जरूर से जरूर आएं। the thing is that you can. You will hear about something like data science, and you will got high package if you join data science research. I belong to a background to data science, but I joined the semiconductor industry. Yes. That's why you will ask Because this you know the question. future. I know. If you join the semiconductor industry, and after like even if you are join industry after MTech only, if you have MTech in BLSI or ICT, then your package is very high as compared to other. But and it is like very reputed job. Yes. In whole world there is few countries who have the ability to production in semiconductor. True, true. So they will like you will have very good opportunity to go abroad and very with high package if you join this. So the thing is that if you are looking for data science, if you have good knowledge in programming like other thing, so you can also join this. There is no like allegation you have only BTech in electronics and something. एलिजिबिलिटी जनरली क्या रहता है इनका? Generally eligibility is BTech in electronics or allied area. Okay, okay. At least you have learned about like EMFT or basic electronics subjects. So you should have knowledge about that. And also if I looking tell about the PhD in electronics, so you should focus on 3 major subjects. One is digital logic design. So you can read the digital logic design using Maurice Mano. Maurice Mano is the writer a book. You can read that book. And another one is signal and system. The very like popular subject for electronics students. So you can study signal and system or book P. Ramakrishna Rao. I will refer to you. So signal and system you can use that, and also communication system
there is a book is communication system, and third one is you should learn about electromagnetic field theory, EMFT. EMF, yeah. So three, I think three are major subjects. You should have knowledge about that this theoretical physics in electromagnetic field theory. You should have knowledge about like Maxwell theorem, like Gaussian law, these basic concepts. Nothing is like rocket science. You should, if you have knowledge about basic in signal system, EMFT and digital logic design, so you can do really much better. तो मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक कि मतलब कोई आईआईटी के प्रोफेसर टॉक दे रहे हैं लास्ट 5 to 10 मिनट्स. डेफिनेटली इट वाज वेरी आई मीन इंटरेस्टिंग द थिंग्स ही टोल्ड. और एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा इन बिटवीन, मैं ये दोनों स्कॉलर्स का ईमेल आईडी दे दूंगा. यू कैन स्टे इन टच विद देम इफ़ एनी इज लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस. तो दिलीप एंड शिवेंद्र विल गाइड यू. डिस्क्रिप्शन में मैं ईमेल लगा दूंगा. और अधिक से अधिक आप यह वीडियो को शेयर करें सो दैट कि पीपल शुड नो कि एसयू का जो डिपार्टमेंट है फिजिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, काफ़ी बेहतरीन है. दिस आई एम नॉट टेलिंग, दिस पेपर इज़ नॉट टेलिंग, दिस 2 स्कॉलर्स आर टेलिंग. एंड इन बिटवीन आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पे फॉरेन जाने की भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. नॉट एज ए प्रोफेसर, एज ए स्कॉलर्स को ही मौका मिलता है. अभी दिलीप हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले ये स्कॉलर मतलब कोरिया से घूम के आए थे. तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं अपन. हाँ, तो अभी मैं गया था अराउंड 2nd week of June में. ओके. Actually, there was one conference which was a interaction between particle physics and cosmology, PPC. ओके. So actually I have a work in my cosmology. So I present there my work through a talk. So they invited me after seeing my work and all. So I went there and I present my talk. Actually it was a great exposure to present our work in front of great scientist, or we can say that researcher. So yeah, actually this University of Hyderabad, yeah, one more thing I want to add. So the travel fund that was given to me, it was from the University of Hyderabad only. आपके जेब से 1 रुपये भी खर्च नहीं, actually total budget that I expend to go from this University of Hyderabad, main gate of the University of Hyderabad, I just exit from the gate and I again come to the university. It cost me around 1,08,000. Oh my. And university gave me 1 lakh completely. So I only expend 8,000. In that I went to Korea. I talked to many researcher. I gave my talk. So it was a great thing And for you me. made many friends there also. Yeah. I uploaded the status Yeah, and yeah. all. Yeah. तो यह सब जो है यूनिक चीज़ें आपको नहीं मिलेगी हर जगह. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन एक मतलब जो है हाई क्लास आईआईटी वगैरह में ही होना चाहिए या फॉरेन के इंस्टीट्यूट में ही होना चाहिए. देयर आर ऑप्शंस दैट यू नीड टू लुक फॉर. ओके, एचसीयू है. एचसीयू इज़ ए ग्रेट, आई थिंक इट्स हिडन जेम नॉट ओनली फॉर द फिजिक्स डिपार्टमेंट. इवन वी स्कॉलर्स वी नो ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट एंड हियर पीपल हैव डन देयर ग्रेट जॉब. तो अब हम लास्ट मिनट टॉक पे चलते हैं. सब कुछ जब हमारा हो गया, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, अल्टीमेटली वी वांट करियर सिक्योरिटी. ठीक है, जॉब की बात करते हैं. तो यहाँ पे हम दोनों से 2-2 मिनट की बात करेंगे और स्टॉक को अंत करेंगे. तो पहले हम दिलीप से बात करते हैं कि यहाँ एमएससी जो फिजिक्स में किए थे वहाँ पे क्या स्कोप रहता है जॉब के लिए, क्या इंडस्ट्री हायर करती है, क्या आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं या क्या प्लेसमेंट का सीन रहा, और फिर आगे पीएचडी के बाद या पीएचडी के दौरान क्या अपॉर्चुनिटी रहते हैं, दोनों पे आप प्रकाश डालें. तो जैसा कि मैं बोलूँ तो इंडस्ट्री का इतना नहीं रहता है, लेकिन मास्टर्स के बाद जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो जैसे कई इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें टीचिंग जॉब को अपना करियर बनाते हैं. ठीक ठाक, मतलब उसमें सैलरी ठीक ठाक रहती है, बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली. जैसे कई इंस्टीट्यूट होते हैं जो आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन, फिटजी वगैरह आका जो भी है, तो उनको ज्वाइन करते हैं. और मोस्ट ऑफ देम दे वेंट फॉर हायर स्टडीज इन फॉरेन, लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी काफ़ी इजीली मिल जाती है, बहुत इजीली मिल जाता है. एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स इतने सपोर्टिव और इतने होते हैं अच्छे कि वो तुम्हें खुद गाइड करते हैं कि तुम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा या समथिंग वो करते हैं. तो इस यूनिवर्सिटी का ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट रहता है. दूसरा पॉइंट ये है कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चे मोस्टली आफ्टर मास्टर्स दे वेंट फॉर दिस पीएचडी एंड ऑल इन ऑल ओवर द इंडिया, और वी कैन से आउटसाइड ऑल्सो. या सो आफ्टर एमएससी आई थिंक इट्स अ गुड बेटर टू गो फॉर द रिसर्च. या बेटर टू गो फॉर रिसर्च. तो जनरली क्या होता है, जैसे आपने एमएससी किया, यार बहुत हो गए, घर का प्रेशर है, चलो कहीं जॉब कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका स्टक हो जाएगा, ग्रोथ फिक्स हो जाता है. और जब आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं आपको पैसे की तंगी नहीं है, तो हाँ 3-4 साल का थोड़ा हसल रहता है, बट ग्रोथ विल बी लाइक ए बूम आफ्टर 4 ईयर्स. आप प्रोफेसर्स मतलब आईआईटी में बन सकते हो, यहाँ बन सकते हो, फॉरेन में जा सकते हो. तो अब हम आखिरी बात करते हैं शिवेंद्र. आप हमारे दर्शकों को यह बताएं
कि व्हेन इट कम्स टू मार्केट बच्चों को भी किस किस स्किल्स पे काम करना चाहिए, जैसा कि आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है इन अपकमिंग जनरेशन में, चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो गई, चाहे मशीन लर्निंग की बात हो गई, डेटा साइंटिस्ट की बात हो गई, विच काइंड्स ऑफ स्किल पीपल शुड लुक फॉर एंड स्पेशली हाउ दे कैन मेट देयर स्किल विद द मार्केट नीड? Yeah, I'll tell you one thing. If you are looking to join industry after like BTech, so there is a very complication, and you will get a minimum package. Yes, that is true. So that I'll tell you really, but like reality. मतलब ऐसा of क्यों market. होता है? Yes, what is the reason behind The this? thing is that everyone is looking for the minimum payment. Like if I am hiring for someone, so I'll look for the maximum output. It's like a optimization. Yes. I'll do optimization when I will got maximum output With minimum cost. Minimum cost. Yes, true. So really we know, I have also done BTech, so I know कि आप लोग BTech में कितना कितना पढ़ते हो. और आपने ज्वाइन नहीं किया इंडस्ट्री को, आपने रिसर्च को चुना. I after BTech I joined at Wipro. Oh my God. So Great. in 2019 I was I worked in Wipro for 3 months as IoT analyst, and after that I realized that I'll not good in like this field. Okay. In job area, so I quit the job, and then I started again study, and then I go for data science area. This is boom. So main thing is that if you are like decided one thing in your mind, so that will completely you will fulfill your requirement or your aim. If you are working for that, not like think about that I'll become the prime minister. How can we if you are not doing politics, na? बीटेक वाले ये भी सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर बन जाओ. You can have only the secure security of life only if you have knowledge. So if you are Correct, currently doing BTech, so it is like a very huge amount of institute doing degree of BTech. Correct. They and people like student are recently doing in large amount of BTech. But after BTech, if you join it at MTech is higher education as higher education, so you will become special. You will become like 100% people are doing like number of 100 students are doing BTech in electronics, but only maximum 45 student will do MTech in the allied areas. Yes. So in that 45 there is only 25% people are doing MTech in like this institution, high class institution, Yes. top universities or top IITs. So तो शिवेंद्र, मैं पूछना चाहूँगा व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? क्या उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, या अवेयरनेस नहीं होती है, या फिर कहीं हमारे में प्रॉब्लम है? they have not awareness about Okay, that. They think that awareness. we cannot do. Exactly, We are from a small institution. We have so much family pressure, and how can I manage? So I really tell you, if you are doing BTech from a private institution, you will get only maximum job of 25,000 from private or small institution. 25,000 like 3. जो कि शायद JRF स्कॉलरशिप से भी कम हो. Yeah, but in other end, if you join it MTech, so you will get 12,500 per month For with your studies. For your study, no You will also- expenditure. Yes. And 2 year you got give your like academic area. Then I will tell you one thing. In my university, in my department, if you join it MTech, so there is 1 year for coursework, Okay. and for second year you will got placement. Okay. So there is 2 kind of placement. One is direct for like industry, and second one is through the internship. So both are, if you join it this university, so in second year you will got internship. So there is a इंटर्नशिप इजीली मिल जाती yeah, है. I will tell you one thing. You will got your dream university, like dream companies like AMD, Adobe, अच्छा, एडोबी भी है. and MATLAB, and this TCS, and IBM, this kind of Qualcomm, this kind of university, this kind of like companies, yeah. companies have tie up with our institution, na? So there is I will tell you one thing. The minimum package for the internship is 6 lakh per Oh annum. my God, इंटर्नशिप यानी 50,000 रुपए पर महीने. Minimum. So I know my juniors, they are recently got package. So one have highest package has 60,000 per month.
इंटर्नशिप के लिए। मतलब गाइज आप एक लाइन में यह बोलूँ, ये जो क्रक्स बताना चाह रहे हैं प्रोफेसर शिवेंद्र, कि आपको हायर एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 1-2 साल की बात है। ऐसे भी देखो आप बीटेक करते हो तो 1-2 साल इधर उधर भटकते हो, फिर नौकरी 20-25 हज़ार का करते हो। 2 साल में आप एमटेक कर लोगे, कुछ स्किल हासिल कर लोगे। ऑन कैंपस नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस में आपका वैल्यू सीधा 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। 25,000 जो कमा रहे थे आपका स्टार्टिंग होगा 1 लाख से। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई डोंट थिंक वी हैव मिस्ड एनीथिंग। क्या दिलीप ने अपने एरिया का सब कुछ बता दिया, अपना मतलब जो एक होना चाहिए स्कॉलरशिप का, कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस है, यहाँ पे क्या फैकल्टी हैं, फैसिलिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स क्या क्या है, स्कॉलरशिप के बारे में सोचना नहीं है। और जो नए बच्चे भी पीएचडी में आएंगे कुछ दिन में, जिनका एडमिशन होगा, तो दे कैन ज्वाइन। ऑब्वियसली यू विल मीट योर दिलीप सर एंड इफ़ यू ज्वाइन द इलेक्ट्रॉनिक्स यू विल मीट द शिवेंद्र सर। तो शिवेंद्र एंड दिलीप सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा टाइम दिया एंड इट वाज वेरी फ्रूटफुल टॉक, वेरी ट्रस्ट मी। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड दिस मच कोर एंड रॉ कंटेंट जो बच्चे ऑथेंटिक बताते हैं। और द टू बी फ्रैंक थिंग वी आर टेलिंग यू, फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग एंड फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग जस्ट इंटरव्यू विदाउट एनी प्रिपरेशन एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज थिंग्स। तो शिवेंद्र थैंक यू, मिलेंगे हम आपसे बहुत ही अगले वीडियो में और आपका भविष्य सुनहरा हो, अच्छे आप IIT के प्रोफेसर बने, फॉरेन जाएँ और हमारे साथ एक फ़ोटो लेने का मौका दें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए दिलीप जी थैंक यू। तो गाइज यह था हमारा टॉक, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ अपने दोस्तों को, परिवार को, रिलेटिव्स को, जूनियर को अधिक से अधिक शेयर कर दें और हमारे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट का थोड़ा नज़ारा है ना, यह आपका डिपार्टमेंट होगा आने वाले में, आप अगर कल होकर स्कॉलर बनते हैं तो। चलिए टेक केयर गाइज, बाय बाय। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का email ID में दे दिया हूँ, टेलीग्राम लिंक दे दिया हूँ ऑफिशियल, वहाँ मैं सारा अपडेट्स देता रहता हूँ। चलो।